بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حیا کے بارے میں ذرا حدیث پاک سنیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. حیا ایمان کی ایک شاخ ہے یا ایمان کا ثمرہ ہے. ایمان کا پھل ہے، ثمرہ پھل. اور ایمان کا مقام جنت ہے. ایمان کا مقام کیا ہے؟ جنت. اور بے حیائی اور بے شرمی بدکاری میں سے ہے. بے حیائی بے شرمی بدکاری میں سے ہے اور بدی دوزخ میں لے جانے والی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو تشریح کیا علماء کرام نے. اس حدیث میں اور اس سے پہلی حدیث میں بھی جو حیا من ایمان فرمایا گیا، بظاہر اس کا مطلب یہ کہ شرم و حیا شجر ایمان کی خاص شاخ یا اس کا ثمرہ ہے. شرم و حیا شجر یعنی پیڑ، ایمان کی خاص شاخ یا اس کا ثمرہ ہے، پھل ہے. صحیحین کی ایک حدیث دوسری حدیث میں جو کتاب الایمان میں گزر چکی ہے، فرمایا گیا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان ہی کی ایک شاخ ہے. بہرحال حیا اور ایمان میں خاص نسبت اور خاص رشتہ ہے. حیا اور ایمان میں خاص نسبت اور خاص رشتہ ہے، اور یہ سب اس کی تعبیریں ہیں. سب اس کی تعبیریں ہیں. اور اسی کی ایک تعبیر وہ بھی ہے جو اس سے بعد والی حدیث میں آ رہی ہے. دوسری حدیث مبارک ہے حضور وسلم کی سماعت فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں ہمیشہ ساتھ اور اکٹھے ہی رہتے ہیں. حیا اور ایمان یہ دونوں ہمیشہ ساتھ اور اکٹھے ہی رہتے ہیں. جب ان دونوں میں سے ایک کو اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ ایمان اور حیا میں ایسا گہرا تعلق ہے. اگر تشریح اس کی معافی چاہتا ہوں، تشریح علماء کرام کی، مطلب یہ ہے کہ ایمان اور حیا میں ایسا گہرا تعلق ہے. اگر کسی آدمی یا کسی قوم میں سے ان دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھ جائے گا. الغرض کسی شخص یا جماعت میں حیا اور ایمان یا دونوں ہوں گے یا دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوگا. سمجھ آئی؟ الغرض کسی شخص یا جماعت میں حیا اور ایمان یا تو دونوں ہوں گے یا دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوگا. جس قوم میں اور جس شخص میں حیا اور ایمان ہوں گے تو دونوں ہوں گے، نہیں تو ایک بھی نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی؟ اب اس کی تشریح تھوڑا میں بولتا ہوں اس کے بارے میں. حیا کیا ہے؟ حیا ہے جسے کہتے ہیں ایمان کا ایک شعبہ ہے. ایمان اور حیا ایک ہی بات ہے. ان دونوں کا آپس میں ایک باہمی تعلق ہے. یعنی آپ اتنے بے حیائی آ گئی آپ کی کہ آپ کو یہ نہیں پتا. میں ایک نامحرم سے کھلے عام بات کر رہا ہوں جو اس کے مطلب برہنہ کپڑوں میں ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، ہاں کپڑے بھی جو ہے نیم برہنہ ہے. آپ اس سے بے خوف وغیرہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں تنہائی میں، تو بے حیائی ہے. یعنی آپ ایمان ہی گئے آپ تو بھائی صاحب، زنا تک پہنچ گئے آپ. ایسی لڑکیاں دوپٹہ نہیں آرام سے باتیں کر رہی ہیں، اجنبیوں سے کھڑی ہیں باتیں کر رہی ہیں، تو یعنی زانی ہیں آپ. میرے کسی بزرگ نے کہا ہے جو لڑکی لڑکوں میں رہتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، ہر وقت لڑکوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے، سمجھ لو زانی ہے. وہ عورت زانی ہے 100%. یاد رکھیے گا، یہ نصیحت والی باتیں ہیں. اس گھر سے لڑکی لاؤ جس گھر میں مرد ہو. یعنی جو مرد ہوگا نا وہ اپنی لڑکیوں کو کہیں بیٹھنے نہیں دے گا، نگاہ رکھے گا ہر وقت. مرد کی علامت ہوتی ہے. جو مرد نہیں ہوگا نا اسے پرواہ نہیں اس کی بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں بھائی صاحب. وہ تو خود بٹھا کے باتیں کرے گا. یعنی کوئی رشتے دار آ رہے ہیں جوان لڑکے، وہ تو خود بیٹھا ہوگا. لڑکی زیادہ بولے گی پتا وہ کم بولے گا، وہ کم بولے گا، لڑکی زیادہ بولتی رہے گی، تو وہیں سے لڑکی بگڑتی چلی جائے گی. جس گھر میں آئے گی اس گھر کو تباہ کر دے گی. جس گھر میں گئی اس گھر کو تباہ کر دے گی. جس کے نگاہ میں چلی گئی تباہ کر دے گی. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں کہاں سے کس کو بنانا ہے. ہر شر میں خیر رکھیے اللہ تعالیٰ، ہر شر میں. کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، کسی بندے سے شروع سے ہی تو منتخب اللہ نے کیا انتخاب. ہاں جی، 50,000 سال پہلے دنیا بنانے سے پہلے روحیں بنانی ہے اللہ تعالیٰ نے. ان کی تقدیریں لکھ دی، ان کو جنتی دوزخی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. تصدیق کر دی کہ جنتی ان میں کون ہوگا، دوزخی کون ہوگا، ان کا کتنا رزق ملے گا، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں موت ہوگی، سب لکھ دیا اللہ نے. دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کے بارے میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ جس کو شر دیتے ہیں نا، کسی چیز میں شر رکھتے ہیں، یعنی پیدائش، اس کے والدین کیسے تھے، اس کی بہنیں کیسی تھیں، اس کی بیوی کیسی تھی، تو یہ شر ہی تو ہے. ایسے سخت دے دیا وہ بیچارہ پریشان ہے، برداشت کر رہا، تو وہیں سے تو اللہ تعالیٰ اسے بنائیں گے. صبر اور شکر سے پتہ چلا بنتے بنتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ سمجھ نہیں سکتے. سمجھ میں ہی بات. وہ ایسا ہو گیا جس سے کہ سمجھ لو پیدل اس نے بغیر کسی سہارے سے ہمالیہ طے کر لیا. ہمالیہ پہ چوٹی پہ پہنچا. ہمالیہ پہ پہنچنے کے لیے سب تمام چیزیں ہے نا وہ چاہیے نا. اس کے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں چڑھنے کے، جو بھی چیز سے چڑھا جاتا ہے ہمالیہ پہ، وہ بغیر انسٹرومنٹ کے مطلب سامان کے، مطلب جو ہوتا ہے ایک تو جو سامان ہوتا ہے جو اس کا چڑھنے کا ہمالیہ پہ، بغیر اس کے وہ اپنی طاقت سے، اپنی کوشش سے، اپنی کاوش سے، اللہ کے فضل سے ہمالیہ عبور کر لیا اس نے. کیونکہ وہیں سے شر سے خیر، ہر شر میں خیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہر تقدیر اچھی لکھی ہے اللہ تعالیٰ. ہر نقائص و عیب سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہر نقص
اور ऐब से पाक है अल्लाह ताला, तमाम मौसूफ़ कमालात हैं अल्लाह ताला, उसके मज़ाक हैं अल्लाह ताला। लेकिन हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, हाय मैं ऐसा हो गया, हाय मेरे माँ बाप ऐसा है, मेरी बीवी ऐसी, नहीं, कभी नहीं सोच, बल्कि आप वहीं से बनते चले आइए, जो आपके हकूक़ हैं अदा कीजिए, दूसरा कर रहा है छोड़िए आप, दूसरा क्या कर रहा है, माँ बाप क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बीवी क्या कर रही है, आप अपने हकूक़ अदा कीजिए। जिस दिन आपको पूरा पता चल जाए कि शरीयत अब यहाँ इजाज़त देती है हटने की, निकलने की, तो वहाँ बढ़ जाइए। आप देखिए आपकी रहनुमाई जब अल्लाह ताला कर रहे हैं तो शेख की बरकत से ही कर रहे हैं। शेख ने आपको खिलाफत दी है। हाँ, खिलाफत इसलिए नहीं दी कि आप सबको बुरीद करते रहो, खिलाफत इसलिए दी कि आप अपने आप कामिल हो जाओ, आप अपने कमाल को बचाओ, अपने आप को, अपने अखलाक रज़ाइल निकालो, अखलाक हमीदा का उसूल करो। आपको खिलाफत इसलिए नहीं मिली कि आप सबको मुरीद कर लो, आप सबसे नजराने लेते रहो, तोहफे तफाई, और खूब पैसों में गाड़ियों में फिरो, हाँ, मुरीद बना लो। अपनी इसलाह के लिए आपको खिलाफत मिली, अपनी इसलाह पे रहो, और अल्लाह ताला आप मर्ज खलाइक बनाए, वो अल्लाह का काम है। अगर कोई आता है आपके पास तो उसकी इसलाह कर दो, ये है असल मकसद, नस्लुल ऐन ये है शरीयत का। मान समझ में आई बात? तो असल ये है कि अपने हकूक़ की अदायगी हो, समझ में आई? देखिए अगर कोई बच्चा औलाद वालिदैन की नाफरमानी करता है तो उसके लिए दोज़ख भी, दोनों दोनों जहाँ ख़राब है, यानी दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब, उसको दुनिया में भी ज़लील होना पड़ता है, आखिरत में भी। और कोई वालिदैन अपनी औलाद को तकलीफ़ दें, तो मेरे हज़रत वाला बता रहे थे कि सातों तोक, दुनिया और ज़मीन और आसमान के सातों तोक उसके गले में डाल देते हैं माँ बाप के अल्लाह ताला, सातों तोक गले में डाल देते हैं ऐसे वालिदैन के जो अपनी औलाद को तकलीफ दे, औलाद को नुकसान पहुँचाए। ये भी है, याद रखना हमें, ये नहीं कि औलाद सारे हुकूक वालिदैन के ही हैं, औलाद के कोई नहीं है। वालिदैन के हुकूक औलाद पे हैं, औलाद के हुकूक वालिदैन के हैं, और वालिद के हुकूक औलाद पे हैं, बीवी पे भी हैं। जितने हो सके बीवी के हुकूक अदा करो, बीवी नहीं समझती तो फिर चुप हो गए, बैठ जाओ खामोश। हाँ, बिल्कुल सब्र करो, साहबों ने सब्र नहीं करा, सालों दूर रहे बीवी से, महाज में लड़ते रहिए, हाँ, सालों दूर रहे महाज, हाँ, सालों दूर रहे। बहुत से तो एक ही शब ज़िवाब मनाई और गुसल भी नहीं किया, फिर शहादत पाली। तो इस बात को नज़र रखो, हमेशा जब तकालीफ आए सहाबाओं का, हाँ, ख्याल कर लो कितनी तकालीफ उठाई, और हुजूर की आल को ख्याल कर लो कि हुजूर की आल ने कितनी तकालीफ उठाई, फिर अपनी तकलीफ दूर हो जाएगी, फ़ौरन दूर हो जाएगी। फिर आंसू जो निकलेंगे ना, हुजूर की आल की तकलीफ में निकलेंगे, सहाबा की तकालीफ में निकलेंगे, अपनी तकलीफ में आंसू नहीं निकलेंगे। यहीं से मकाम जो है मकाम महमूद को पहुँच गए आप, बाफजल बारी ताला, अल्लाह ताला की सआदत से, शेख की बरकत से। ये है, समझ में आई? हर शर में खैर रखी है अल्लाह ताला ने, तो रास्ते अल्लाह ताला खोल देते हैं, रहनुमाई फरमाते हैं, खोल देते हैं, तमाम हाथ पैर डाल के तहत असरात में डाल दे कोई आपकी आँख में पट्टी बांध के जलालत के साथ, वहाँ से भी अल्लाह ताला निकाल देंगे। लेकिन इस काबिल तो बनो आप, कोशिश तो करो, रहनुमाई कुरान की पकड़ो, अल्लाह ताला की है, और इरशादात तालीमात पे कमर बस्ता के अमल पे रहो, हुज़ूर वसल्लम की क्या तालीमात है। फिर आप क्यों हिम्मत हारते हो? लेकिन नमाज में कोताही हो रही है, सब कुछ हराम, फिर आप तो कम जानवरों के ज़ुमरे से भी निकल गए आप। टोपी लगा के दाढ़ी रख के आपने सोच लिया कि मैं सब कुछ हूँ, आप तो जानवरों से भी गए, जानवरों से भी गए आप। आपको ये नहीं पता मेरे हुकूक क्या है, यही नहीं पता मुक्तदी के क्या हुकूक है, यही नहीं पता मेरे साथी नमाजी के क्या हुकूक है, आपको ये नहीं पता अहले इलाके के क्या हुकूक है, आपको ये नहीं पता पड़ोसी के क्या हुकूक है। बस आपने एक रट्टा लग लिया कि आओ जी नमाज को नमाज पढ़ लो, बस आपने यही समझ लिया शोबा ईमान यही है। 70 से ज़्यादा, यानी इतने अनगणित शोबे ईमान के हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, अफसोस अफसोस, हम यही सोचे बैठे हैं कि हम जो है मुकम्मल हैं। आप सोचिए कि हम क्या किताबें किताब मुताला कीजिए, मुताला करके भी दीन फैलाइए। किसने कहा? देखो मैं बताता हूँ आपको, जब किसी शेख के पास कोई मुरीद आता है ना, तो शेख उसके अयूब देखते हैं, इसमें कमियाँ क्या हैं। और कोई मुरीद नहीं आया, कोई इसे मिलने आया, तो फिर उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं शेख, ये अच्छा आदमी, इसकी अच्छाइयाँ देखते हैं। और मुरीद जो हो जाता है उसके अयूब देखते हैं। इसलिए थानवी साहब रहमतुल्लाह, मैं समझता हूँ, अगर कोई मुरीद आता था, ये कहते थे तुम तकरीर तो नहीं करते? कहते नहीं, तो फिर उसे तकरीर की इजाज़त नहीं देते थे कि ताल्लुक़ माल्ला हासिल नहीं हुआ, यानी निस्बत विलायत की मिली नहीं, आप तकरीर कैसे कर रहे हैं? वो अपने मुरीद के लिए कहते होंगे शायद, गालिबन। बल्कि अगर कोई गैर मुरीद है तो उससे कहेंगे हाँ आप तकरीर करो। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि तकरीर करो, कोई बात नहीं, आपको इजाज़त है तकरीर करने की, क्योंकि आप अपनी इसलाह की तरफ है ही नहीं। वो तो मुरीद आ गया उनसे मिलने के लिए, हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह, तो उससे कहेंगे नहीं अभी मिंबर शरीफ पे मत बैठो, फिर अपने को तज़किया करो, अखलाक रज़ाई निकालो, क्योंकि उनके मुरीद बन चुके हैं वो। और जो मुरीद नहीं होगा उनसे कहेंगे हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप तकरीर करें। आलिम को तकरीर करनी आई है, बिल्कुल। हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह से पूछा मैंने, जो अपने ज़माने के बड़े मुफ्ती आज़म रहे और आरिफ बिल्लत है, वो भी बहुत बड़े ऊँचे मकाम था विलायत उनकी। मैंने कहा मैं तकरीर कर सकता हूँ, जबकि मैं उस वक्त पूछा था मैंने 15-20 साल पहले, जब तक मैं रूहानियत पे कमाल भी नहीं था, ना हूँ ना जब था। ज़ाहिर बात है अब भी ऐब के साथ हूँ, सरापा ऐब है मेरे अंदर, तब भी थे अब भी है। अल्लाह अल्लाह ताला इसको निकाल दे मेरे ऐब को। तो कहाँ आप कर सकते हो तकरीर? अगर आपका हाफ़ज़ा अच्छा है और दीन की मालूमात है, आप मुताला कर रहे हैं अच्छा, और हाफ़ज़ा भी सही है, अगर हाफ़ज़े से होता है सारी तकरीर का जो है मदार।
तो आप कर सकते हैं, उन्होंने कहा कर सकते हैं। लेकिन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से क्या करें, आप कैसे मेंबर शरीफ पे बैठे हैं? आप पहले अपनी इस्लाह कीजिए, क्योंकि वो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह वो क्या, वो शेख हैं, वो मुजद्दिद हैं अपने ज़माने के, रहे हैं और क़यामत तक रहेंगे, मैं समझता हूँ। क्योंकि अब जो मेहंदी इस्लाम का ज़हूर है ना, वो होगा, वो एक सिपह सालार होंगे। सिपह सालार यानी अब वहाँ प्यार की और तकरीर की ज़रूरत नहीं है, अब तो बस कितना मसल है, बातों के भूत लातों से नहीं मानते, नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सॉरी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हज़रत मेहंदी इस्लाम का मेरे ख्याल से रवैया यही होगा कि अब ये तो इन्हें तकरीर करनी बेकार है, समझते नहीं प्यार की बोली। अब पता है इनके जुर्म पे इनकी गर्दनें काटो, अपने आप इंसाफ हो जाएगा पूरी दुनिया में, जब भी तो इंसाफ होगा। जिसने जो जुर्म किया गर्दन काट दी फ़ौरन, किसी लड़की को छेड़ा देना किया फ़ौरन गर्दन काटी। कोर्ट में तो 10 साल पे, चोरी पे 10-10 साल लग जाते हैं। किसी को आतंकवादी डिक्लेयर करने में 20-20 साल लग जाते हैं, बाद में कहते हैं जज साहब भाई गलती हुई, आप आतंकवादी नहीं थे, जाइए। बताइए क्या, मतलब क्या सिस्टम है। एक आतंकवादी को पुलिस पकड़ के ले आई, ये आतंकवादी है, उस पर केस चलते चलते पता चला 15 साल बाद जज साहब कह रहे हैं भाई आप आतंकवादी नहीं है। यानी उसका दादा मर गया, उसकी माँ मर गई गम में, उसके बच्चे रोड पे आ गए, भीख मांग रहा, उसका मकान बिक गया, भी कह रहे हैं जी आप आतंकवादी नहीं है। क्या ज़माना है, क्या ऐसी तालीम, क्या ऐसे कोर्ट, ऐसे कोर्ट को सलाम, ऐसे सुप्रीम कोर्ट, ऐसे हाई कोर्ट को सलाम, जो 20 साल बाद कह रहे हैं जज साहब आप आतंकवादी नहीं है। ये है, तो ऐसा क्या सिस्टम, आप कहते हैं इस्लाम तो जी, इस्लाम जो है मतलब जो नुकसान पहुँचाने का है, मतलब ये आतंकवादी होते हैं। आतंकवादी इस्लाम नहीं है, आतंकवादी आप हैं, आप ही पैदा कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्री बना बना के दिखाते हैं जी इस्लाम ऐसा है। इस्लाम ऐसा नहीं है भाई साहब, आप देखिएगा इस्लाम ऐसा है कि अच्छे डॉक्टर की इज्जत तार तार होती है और आप बैठे हुए खामोश देख रहे हैं। मणिपुर में 2 लड़कियों की इज्जत तार हो रही है, आप खामोश बैठे हुए हैं। जो वतन का नाम रोशन कर रही हैं, आप खामोश बैठे, उनके डंडे मार रहे हैं, उनकी फाइल भी नहीं खोल रहे, जिन जिन जो इल्ज़ाम लगा रही हैं, जिस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट किया उन पर इल्ज़ाम लगाना, उसकी फाइल भी नहीं खुल रही। आप यहाँ पुलिस को आप कहते हैं खामोश हो जाओ। जो कोई पुलिस में महकमे में कोई केस आता है, यानी किसी एमएलए और एमपी की चोट लग गई मिनिस्टर की, तो छोड़ देते हैं, बाकी उसके केस की इंक्वायरी भी नहीं करते, वो छानबीन भी नहीं करते, एफआईआर पे काम भी नहीं करते। छूट दे रखी है आराम से, भाई जाई कुछ भी करो, तुम थाने में बैठ गए, तुम्हें छूट है। तो ये नहीं, ये निज़ाम है आपका। क्यों हिंदू भी परेशान, सिख भी परेशान, ईसाई भी परेशान, ऐसी हुकूमत से। कोई पता चला किसी दलित की लड़की इज्जत उठ गई, पता चला रोता कर रहा है, उसको ही बंद करके मार रहा है वो पकड़ के। आप कह रहे हो जी हम बहुत अच्छे हैं, इस्लाम बुरा है। इस्लाम बुरा नहीं है भाई साहब, इस्लाम तो ऐसे, अगर भाई साहब इस्लाम हो तो एक हिंदू लड़की कहीं से चले, रात को भी निकल जाए, रात के 2-3 बजे, हिंदू लड़की, कोई मुजाल नहीं कि मुसलमान भी छेड़ दे उसको, या हिंदू भी छेड़ दे, उसे पता है गर्दन काट कर रखा देंगे ऊपर। आप कह रहे हैं जी ये तालिबान को बुरा कहते हो। सबसे पहले उन्होंने अफीम के खेत जला दिए उन्होंने। तालिबान बुरा होता था, अफीम में पूरी दुनिया में अफीम कितनी महंगी बिकती है, खूब ऐश कर रहा होता है, अफीम बेचते हैं सब जगह, फ़ौरन के नहीं ये नुकसान हो जाएगी सबका, पूरा खेत जला दिए उन्होंने। आप कह रहे हैं साहब तालिबान तालिबान कर रहे हैं, आप कितनी तरक्की कर रहा है तालिबान। हम्म? भाई साहब मैंने कहा ना, जिस घर में मर्द होगा उसकी औरत भी सही होगी, उसकी बच्चियाँ भी सही होंगी। जो मर्द ही नहीं हो, तो यही नहीं पता, मेरी अपनी बेटी को बिठा के गैरों से बात करवाएगा, पता चला वो चप्पल लेके जहाँ भी जाएगी मियाँ को खड़ी हो जाएगी मानने के लिए। और मोदी साहब ने और फतवे लगा दिए कि साहब तलाक नहीं सकता, मुझे वो हिंदू मुस्लिम औरतों से बड़ी मोहब्बत है। तो आपने रैकेट फैला रखा है, रैकेट फैला रखा है, मुस्लिम औरतों को पकड़ना और उनको हिरासमेंट करना सेक्सुअल। उसके बाद फिर वो जहाँ मर्जी यहाँ फ़ोन पे जाती रहती, क्योंकि हया ख़त्म कर दी हर औरत ने, है ही नहीं जिससे चाहे बात कर रही है। बेपर्दा, जब बेपर्दा होगी तो ईमान ही नहीं रहा, वो बदकारी में मुब्तला हो गई, वो जिना में गई। छोटी छोटी बच्चियों की नस उतर रही है, मैं देख रहा हूँ। 8-8 साल की लड़कियाँ बस बाहर जो जिस कंडीशन में कर रही हैं, जब भी समझ गया। सबका माशरा ही ख़राब है भाई साहब, सब औरतें ऐसी हैं। जब तक घर औरत में खुद नेकी नहीं होगी, वो बच्ची को नेक नहीं बना सकती। और अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं किसकी औलाद कौन सी देनी है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, अल्लाह को पहले ही पता होती है कि इसके मैंने क्या कौन सी औलाद देनी है। इस ज़माने में मुझे बता रहा हूँ, जब भी तो मैं बेफिक्र हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। अभी तो मैं पिट रहा हूँ, जिस दिन मेरे हाथ में ही ताकत आएगी और आएगी इंशाल्लाह ताला, फिर दिखाऊंगा तुम्हें नज़ारा कि क्या नज़ारा होता है। चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल नहीं है आज के ज़माने में, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मोबाइल तो वैसे भी बहुत आसान है भाई साहब, आप देखिएगा, आप आराम से बैठिएगा और तमाशा देखिएगा। हैं, यहाँ के जो इलाके के मुसलमान हैं, जो अपनी ड्यूटी लगाते हैं बताने के लिए, हाँ भाई निकल गया कचौरी खाने, हाँ भाई आ गया, जल्दी निकल हट जाओ जहाँ भी हो, फ़ोन के ज़रिए पता चल जाता है, भाग के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही बस पुलिस आ रही है, भागो, पहले ज़माने अलग था, अब तो मोबाइल से सब बता दो सब कुछ। हैं, सुनिएगा, वो भंगियों के साथ शराब पीने आता है रोज़ाना, भंगी के साथ बैठ के शराब की बोतलें लाता है, वो गली में जिसकी ड्यूटी लगनी चाहिए 9 बजे, आन के साथ बेखड़ा बैठ जाता है ना। मोहल्ले वाले उससे पूछ रहे हैं क्यों बैठा हुआ है, तो क्या क्या मतलब तेरा। उन्हें पता मेरा घर थोड़ी है, मेरे घर में धुआं आग थोड़ी लगी है, उसके घर में लगी है। तो बात हुआ, सब भुगतोगे भाई साहब सब। इस इलाके को मैंने सन्नाटा देखा, खंडर देखा, पूरा इलाका जामी का पूरा खंडर बता दिया मैंने बस। क्योंकि आपने तौबा कर लो, नहीं तो 20 बच्चों से भी गए, अपने ईमान से भी गए और प्रॉपर्टी से भी गए। और नहीं, अल्लाह वाले के घर में घुसना बहुत आसान बात नहीं है, किसी अल्लाह वाले के घर में बगैर इजाज़त के घुस जाना। समझ में आई बात।
बस बता दिया मैंने, अल्लाह वालों की औलादें ज़ैन नहीं होती, अल्लाह वाले अपनी छोटी दूसरे की बच्चियों को भी निगाह नहीं डालते, जब निगाह नहीं डालेंगे अल्लाह ताला आप उसकी बच्ची को कैसे रुसवा कर सकते हैं, समझ में आई बात। हाँ, औलाद औरत पैदा करती है, समझ में आई। और वो औरत जो नमाज ना पढ़ती और मर्द को पता है कि कब मैं मुलाकात कर रहा हूँ कब नहीं कर रहा हूँ, वो बेहतर जानते हैं अल्लाह ताला, तो वो इसके लिए अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, अजाइब अल्लाह ताला जानते हैं, जितना गुमान है वो बता दिया मैंने आपको। बस अब आप अपना वक्त का इंतजार करें कि आप क्या कर रहे हैं, समझ में आई। और पुलिस का महकमा तो आप बेफिक्र रहिए, उसके लिए अल्लाह काफ़ी है। जब इतनी बड़ी फ़िरौन की सल्तनत को बगैर लड़े कामयाबी दे दी हज़रत मूसा इस्लाम को, तो पुलिस क्या चीज़ है मियाँ, पुलिस क्या चीज़ है। सारे खुराफात नेता में हैं और नेता पुलिस को ऑर्डर देते हैं, पुलिस और नेता को मानती है। और जवानों को मनवाने वाले सब नेता, सारे IPS IAS खामोश हैं, सारे नेता खामोश हैं। आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? वोटों के लिए आप निकलते हो रैली ले लेके, सारे रैली कर रहा हो, आप रैली करते हैं जवानों के लिए कि भाई जवान मर कैसे गए। कौन कहता है कि पाकिस्तान ने मारा है? आप रैलियाँ कर रहे हैं कि साहब बोले आपको वोट चाहिए, वोट अपना नाम चाहिए। भाई साहब ये वतन सबका है, बता दिया मैंने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी है वतन के लिए, तरक्यात भी दी, मॉन्यूमेंट बनाए। आप आए अपने वोट के लिए पूरी रैलियाँ कर रहे हैं, पूरा मतलब पूरा पैदल यात्रा कर दी, और जवानों के लिए आपने एक भी नहीं निकले बाहर नेता, क्या अपोजिशन हो या गैर हैं, कोई से भी हुकूमत है, जवानों को मार के खामोश बैठ गए आप। हमें मरता है गाँव का ही तो आदमी है, गाँव का आदमी है जवान, जो आज हम तो आराम से रातों को सर्दी में सर्दियों की रातों में हम लिहाफ ओढ़ के अपने कमरे में आराम से सो रहा हूँ। जवान लद्दाख के माइनस टेम्परेचर में हमारे लिए हिफाजत कर रहा है, वो आम आदमी है। जवानों को आम आदमी कह दिया, सबकी प्रॉपर्टी अब जब्त होगी इंशाल्लाह ताला, बड़े बड़े नेता होगी, सब जवानों में बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। इसका मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला से, मैं जवानों के लिए खड़ा हूँ। अल्लाह ताला मुझे आवाज़ उठाई है मैंने अल्लाह के लिए, तो दुश्मनी ली है मैंने अल्लाह के लिए पुलिस से। इस घमंड में मत रहना कि मेरा नाम नबूत है, मैं नेता हूँ, मेरे साथ पुलिस बहुत आई है, IAS IPS को अल्लाह ताला ज़मीन में ले आएंगे, सल्तनतों को पैरों पर रखते हैं अल्लाह वाले। और सुन लेना, ये IPS IAS ने देश को बेकार किया, ये दोबारा पहाड़ा पड़ेंगे दो ही कम तो स्कूल में प्राइमरी में जाके इंशाल्लाह ताला देखिएगा। आमीन, इसको तकमील करेंगे अल्लाह तबारक ताला, मैं दुआ करता हूँ। आमीन सुम्मा आमीन, बाखुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।